In previous lecture, we discussed about the classification of ketones. Now, we are going to discuss about the nomenclature of ketone. As we know that each and every organic compound is named by two methods of nomenclature. First one is common name system. It is also called trivial name system. And second one is IUPAC name system. So, what are the common name system? Its rule by taking certain examples. So common name system of ketones. Suppose CH3 C double bond O single bond CH3, C2H5 C double bond O C2H5. No doubt, as you know, these are nothing but two. The example of simple ketone. According to the common name system, such kind of simple ketones, suppose it is an aromatic ketone having both phenyl ring, both aromatic ring, same ring attaches to the carbonyl carbon. Then according to the trivial name system or common name system, simply prefix die, क्या करना है हमें? Die prefix यूज करना है. किसके पहले? दो सेम अल्काइल या अराइल ग्रुप के नाम के पहले डाई प्रीफिक्स यूज करो और उसके बाद वो अल्काइल या अराइल ग्रुप का नाम लिख दो and simply word ketone is to be added. So in the first example, there are these two CH3 groups, methyl groups. So simply prefix di should be used. So dimethyl and word ketone is to be added. So the common name of this compound, this ketone, is a dimethyl ketone. Here C2H5, both groups are same, both are ethyl. So it is called diethyl ketone. These two groups are phenyl group, aryl group. So diphenyl ketone. These are nothing but simple ketone. How to nominate them? By common name system. According to the common name system, for simple ketone, simply prefix di should be used before the name of two same alkyl or aryl group, and then simply word ketone is to be added. In this way, dialkyl ketone, in this format, the simple ketones are to be named by common name system. Clear? Okay. अब इसके बाद मिक्स्ड कीटोन के बारे में कॉमन नेम सिस्टम क्या बोलता है कि इन केस ऑफ मिक्स्ड कीटोन देयर आर टू डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन. Hence, while naming such type of mixed ketone by our common name system, you should use the alphabetical order between the names of two different alkyl or aryl group attached to the carbonyl carbon. In this example, there is a C2H5 group named as ethyl. This is a CH3 group named as methyl. In alphabets, E come before, so write the name ethyl. Then methyl का M बाद में आएगा alphabets के अंदर. So ethyl methyl ketone, not the methyl ethyl ketone. It should be wrong. Alphabetical order follow करना है. तो नेम क्या बनेगा उसका? इथिल मिथिल कीटोन. यहाँ पर C3H7, this is a propyl group, and C2H5, this is the ethyl group. So the name should be given as ethyl propyl ketone. यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप है और ये अराइल ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप है, इसको हम फिनाइल बोलते हैं. सो यम कम फर्स्ट, देन फिनाइल का पी आता है. सो मिथाइल फिनाइल कीटोन. यानी कि मिक्स्ड कीटोन के अंदर डाई प्रीफिक्स नहीं लगाना. तो क्या करना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. किसका? अल्काइल या अराइल ग्रुप के नाम के पहले वर्ड का, पहले अल्फाबेट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और उसके बाद सिंपली कीटोन वर्ड ऐड करके उसका नेम बनाए. जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया इथिल मिथिल कीटोन, यहाँ पर इथिल प्रोपिल कीटोन, नॉट प्रोपिल इथिल कीटोन. इट शुड बी रॉन्ग वन. अगर इसका करेक्ट नेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना. सिंपल सा, समझे? ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IUPAC नेम सिस्टम. कॉमन नेम सिस्टम के अंदर सिंपली क्या करना है? सिंपल कीटोन्स है तो दो अल्काइल या अराइल जो ग्रुप सेम है उसके नाम के पहले डाई लगाने का. एंड मिक्स्ड कीटोन के अंदर अलग अलग अल्काइल या अराइल ग्रुप होते हैं, इसके लिए उनके नाम के पहले अक्षर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना. ओके. लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस है, कुछ रूल्स है, वो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन द रूल्स एंड टेक द एग्जाम्पल्स. ओके. पहला तो रूल ऐसा है कि कार्बोनिल कार्बन
जिस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के अंदर है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करो, उसके अंदर कार्बोनिल कार्बन आना ही चाहिए, ओके। और वो सेलेक्ट किए हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को पेरेंट अल्केन बोलना। समझो 5 कार्बन है, पेंटेन बोलना। कार्बोनिल कार्बन को इंक्लूड करके 6 कार्बन है तो हेक्सेन बोलना। 5 कार्बन है, पेंटेन बोलना। 7 कार्बन है, हेप्टेन बोलना। वो हो गया उसका पेरेंट अल्केन। जस्ट यू हैव टू रिप्लेस, क्या सफिक्स लगाने का रूल है। जैसे हमने अल्कोहल के अंदर OL लगाया, वैसा कीटोन के अंदर पेरेंट अल्केन के नाम से E निकालो और ONE सफिक्स लगाओ, इट बिकम अल्कानोन। What IUPAC recommendation tell that regarding for suffix, the rule of suffix is there. Just replace ending E from the name of parent alkane and suffix ONE should be attached or added. Hence the name is become in the format of alkanone. Okay. Now the rule for numbering. पहले रूल के अंदर हमने पेरेंट अल्केन डिसाइड किया इंक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन। पेरेंट अल्केन के नाम में से E को रिप्लेस करके ONE लगाया तो अल्कानोन बन गया, अल्कानोन। अब नंबरिंग का जो हम रूल देखेंगे तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा, दिस कार्बोनिल कार्बन शुड हैव लीस्ट पॉसिबल नंबर। यानी कि कार्बोनिल कार्बन को नंबरिंग करते समय समझो हमने इधर से नंबर दिया 1 2 3, तो कार्बोनिल कार्बन हैज 3। इधर से दिए 1 2 2, 2 बड़े या 3 बड़े हैं, हमें बड़े नहीं होना, छोटा नंबर होना, तो ये साइड से दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगर कुछ साइड चेन्स है तो उनका लोवेस्ट सम रूल वहां पर फॉलो करना है। एग्जाम्पल लेके हम उसको समझाएंगे। लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल जिसे हम कहेंगे, ओके। सपोज दैट कीटोन कंटेन 2 कार्बोनिल ग्रुप। ये देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप है ये एग्जाम्पल के अंदर। एज इट कंटेन 2 कार्बोनिल ग्रुप, देन डू नॉट रिप्लेस, E निकालना नहीं है पेरेंट अल्केन के नाम में से। अगर 2 कार्बोनिल ग्रुप है तो E रिप्लेस नहीं करना। अगर एक ही कार्बोनिल ग्रुप है तो E को रिप्लेस करके ONE सफिक्स लगाओ। एज द कीटोन कंटेन 2 कार्बोनिल ग्रुप, 2 कीटोनिक ग्रुप, then retain E as it is of the name of parent alkane and suffix dione। डाई बोले तो 2, ONE बोले तो कार्बोनिल ग्रुप। 2 है इसलिए डाई, कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए ONE। सो अल्केन डायोन, ये फॉर्मेट में उसका नाम लिखो और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना है आपको, ये कार्बोनिल ग्रुप के लोकेंट्स लिखना है। आई विल टेक द एग्जांपल लेटर ऑन। यानी कि 2 कीटोनिक ग्रुप है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है, तो एंडिंग E रिप्लेस नहीं करना और डायोन सफिक्स लगाना, प्रॉपर लोकेंट से उसको मेंशन करना। क्लियर? अगर एरोमेटिक कीटोन है तो एरोमेटिक कीटोन के लिए उसका जो पेरेंट नेम देना है IUPAC में, वो फिनोन के फॉर्मेट में देना है। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल बिकॉज फेनी इन ग्रीक, फेनी मीन्स बेंजीन। फेनी को बेंजीन बोलते, बेंजीन को फेनी बोलते ग्रीक के अंदर, लैटिन के अंदर। तो इसको फिनोन बोलना, फेनी का कीटोन, फिनोन। क्लियर? These are the some example. Now we will take the one by one. You have to practicize the recommendation rules of IUPAC. Suppose this is a simple ketone, that is a dimethyl ketone. The commercial name of dimethyl ketone is acetone also. It is also called acetone. Commercial name या common name बोलेंगे। अब इसका IUPAC name 1 2 3 1 2 3. There are 3 carbon atom. So first of all, select or decide the name of parent alkane, propane. हाँ, प्रोपेन के नाम में से E निकालो, ONE लगाओ। लेकिन 1 2 1 2 द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, द लोकेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। लोकेंट लोकेशन बताना उसका, 2 नंबर का लोकेशन। सो प्रोपैन 2 ऑन, ये लोकेशन पहले लगाए तो भी जमता। 2 प्रोपैनोन और प्रोपैन 2 ऑन, बोथ आर द IUPAC names. The most correct IUPAC name is propan 2 on. Suppose another example is here, like this. Here the total carbon you should count
इंक्लूडिंग द कार्बोनिल कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन उसका पेरेंट अल्केन है. रिप्लेस एंडिंग ई बाय ONE. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फॉलो द लोवेस्ट लोकंट रूल. अगर कार्बोनिल कार्बन को हमने काउंट करते समय इधर से किया 1 2 3, कार्बोनिल कार्बन हैज 3 नंबर, इधर से दिए 1 2 2, 2 बड़ा या 3, 3 बड़ा होता है, बड़े में छोटा होना 2, इधर से दो, इधर से नंबरिंग दो. सो 2 ब्यूटेन 2 ऑन, दिस विल बी द IUPAC. सपोज another example is here, C double bond O, CH2, CH2, C double bond O, single bond CH2. Now what happened here? There are 2 carbonyl group, 2 ketonic group. So according to IUPAC, select the longest chain. You should decide the name of parent alkane depending upon the number of carbon atom in the longest chain. But as it contains 2 ketonic group, 2 carbonyl group, retain ending E of the alkane as it is, don't replace it. And lowest locant rule you should follow. 1 2 3 4 5 6 total carbon are 6. So the parent alkane is hexane. Okay, 2 कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए E रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ. क्लियर? ओके. लोवेस्ट सम रूल फॉलो करो. लोवेस्ट सम 1 2 इधर से आए 1 2. ओके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 5 इधर से भी गए तो 2 5. ओके नो प्रॉब्लम. 2 5 dione. So the IUPAC name of this ketone is hexane 2,5 dione. Okay, suppose there is a aromatic ring attaches as like this. In common name system it is methyl phenyl ketone, but in IUPAC its name is given as acetophenone. क्या बोलना है? Acetophenone. It is a common name as well as IUPAC name. Both names are permitted. Acetophenone ये permit name है, common IUPAC बोल. हमें end phenone word से करना है अगर वो aromatic ketone है. See here, this is aromatic simple type of ketone having both same aryl groups. The name of this compound is clear, benzophenone. Benzophenone. यहाँ पे acetophenone बोलेंगे और यहाँ पर दोनों भी बेंजीन ग्रुप है. सो बेंजो और फिनोन से एंड करना. सो बेंजोफिनोन. सो दिस इज रिगार्डिंग टू योर IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम. अगर अलीसाइक्लिक यानी कि क्लोज चेन रिंग को समझो इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप अटैच है तो अब इसको कैसा बोलना? देख पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख दो. साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइक्लोहेक्सानोन. ये रिप्लेस करना है. साइक्लोहेक्सानोन. सपोज दिस एलिसाइक्लिक रिंग कंटेन 2 carbonyl, then it is called cyclohexane. All right, 1 2 3 4 1 2 3 4. So 1 4 dione. Cyclohexane 1,4 dione. Clear? यहाँ पे E क्यों रिप्लेस नहीं किया? Because it contains 2 ketonic group, 2 carbon. Okay friends, so these are certain practice example regarding with your IUPAC nomenclature system. Tomorrow I will give you much more example for your homework practice questions. Okay, thank you for your cooperation. Stay home, stay safe, say go Corona, and welcome to chemistry.